What was the last topic we were discussing? Power query, right? Power query in the Excel. Yes, ma'am. So, yeah. So, anyone had tried Power query? Yeah. Anyone had tried Power query? Ma'am, we will start from today only. But I had already explained in the last class that how to basically add plugin of Power query. Yes, ma'am. So, have you tried that? And in fact, Yes, I ma'am, a told little you bit. that you can explore many more things into the Power query. That also I had basically told. So, anything you did? Pivot is done. Yeah. We had imported Power Query as well, right? Somewhere we imported, if I'm not wrong. We imported Power Query into Excel. Yeah, this is Power Query, right? Look at this. Query tool is already being imported here. So have you tried that? Or shall I start from the beginning again? How to add Power Query? Yeah, can you quickly brief me or else I can proceed with the things? Yeah. How does Power Query get data? This. Connect to different data sources and load them into PQ. So I had already done with this. Get the data. Yes, ma'am. How we get the data? Ma'am, first we will go to data, Hmm. and then we will choose the option of get data, Hmm. and then we can, export any file which we want to export in Power Query. Right. After And that, I also explain you the basic six main element of Power Query. I think I had explained or not explained. Yeah, it is being explained, right? These are the six things. Workflow, steps, six main elements of Power Query. Ribbon. This is a ribbon query, data preview, properties, and applied steps. It is already being discussed. After that, uh, what we were discussing, how to use Power Query practically to use basically for the data analytics. So get data we did, right? So how to start exactly working with the data in the Power Query. So we need to import it from the source. And if you just look into this Power Query editor, or you can see in this Excel also, this we had imported with the help of data source as a database. And that database is exist in our SQL side, right? If you just see, it is the database which we imported from the SQL. Am I right? Everybody, can you just connect what I am discussing right now? If you are not able to connect, please let me know so that I can revise it quickly and get into the next basically process of Power Query. अगर आपको नहीं याद आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्विकली आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे के हम आगे चले।
आप बता सकेंगे क्या आपने करा है नहीं करा है? मैम ये सीक्वल वाला पार्ट जो अभी आप बता रहे हो वो ना, वो नहीं पता। Okay, so let's talk about it. Okay, so in the data option, there is a get and transform data. Okay, so in the get data option, you just click the get data option. From the database, you have to select import the database from either from the SQL Server, either from the Microsoft Access database, or maybe analysis services, or the database which is located in the cloud side also you can import it. Okay, so we already having SQL Server database because we already discuss SQL topic, right? So already हमारे पास SQL Server भी है और हमारे पास database भी है, तो हम इसको क्लिक करेंगे. Once you click over there, you are able to access your SQL basically site. Now you have to import your server name. So if you just see here, what is my server name? So I will be just copying here. Okay, just try to understand here. सो मेरे सर्वर का नाम क्या है? Laptop HLIO, जो भी नंबर है वो आई एम जस्ट पेस्टिंग हियर. ओके, इसको कनेक्ट करना है. किसको कनेक्ट कर रही हूं मैं राइट नाउ? जो मेरा एक्सेल का बुक 1 खुला है, जो वर्कशीट खुला है, मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ. आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, आप चाहो तो एक फ्रेशली न्यू बुक पे भी आप काम कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वन. इट्स मच बेटर टू स्टार्ट विद द न्यू वन. ओके. यस मैम। Okay. So, yes, Krishnam, I am using the same one only. Okay. So, this is what we are importing, and we are importing from the server. Okay. Now, where is my server is? So, this is my server. Okay. डेटाबेस का नाम अगर आपको कंफर्मली याद हो तो आप डाल सकते हो. अदरवाइज इट्स यू कैन कीप इट ऑप्शनल. ओके. ये आपका क्या कर रहा है? ये जो आपका नया शीट ओपन हुआ है, उसको ये कनेक्ट करने जा रहा है आपके सीक्वल सर्वर से. ओके. अब सीक्वल सर्वर में यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस है, राइट? अगर जैसे मान लो स्टूलन HRMS पे काम किया है नहीं किया है, आई रियली डोंट नो, बट आई विल जस्ट चेक वेदर द डेटा इज देयर और नॉट. या इट्स अ डेटा इज देयर. ओके. तो मैं अगर स्टूल लर्न को कनेक्ट करती हूँ, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल बी लोडिंग अ कंप्लीट डेटा. बट मैं उसमें अगर मुझे चाहिए है कि पर्टिकुलर टेबल मुझे अपलोड करना है, आई डोंट वांट अ कंप्लीट डेटाबेस, आई वांट अ वन टेबल आउट ऑफ इट, तो मैं इस पर्टिकुलर टेबल पे काम कर सकती हूँ. लेट्स से आई वांट टू वर्क ऑन अ कंट्रीज टेबल और अ लोकेशन टेबल और अ रीजन टेबल. अब रीजन टेबल और इसमें डेटा नहीं है. In my region table, I do have one data. Location table is empty. Job table is empty. Country table, I have little bit of data out of it. ओके. सो अगर मुझे स्टूल लर्न पे मैं देख रही हूँ कि डेटा इतना नहीं है मेरे टेबल पे, तो आप कोई भी डेटाबेस ले लो. तो कृष्णम, आपने जिस डेटाबेस में टेबल बना के डेटा डाला है, यू कैन हैव दोज डेटा ऑल्सो, नॉट एन प्रॉब्लम. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अगर इसमें देखती हूँ तो कंट्रीज में भी टेबल ये है: dependents, employee, jobs, location, and region. Okay, so what I'm going to do is I'm just binding और I'm just sourcing employee table. आपको steps याद रखना हो तो आप, मुझे लग रहा है कि you should write the steps. Okay, this gives you more clarity. आप समझ रहे हो क्या? आप लिख लो steps, क्योंकि मैं लिखने से बेटर है कि आप जब खुद से लिखोगे, that gives you more basically a clear picture about the data as well as sourcing of data and the Power Query function. Are you understanding this? Now we are able to import this data. From where it is being imported? So HRDPT, ये हमारा टेबल बेसिकली HRDPT जो है वो हमारा एक डेटाबेस है. स्कीमा जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट है. और कौन सा आइटम मैंने उठाया है वहां से, कौन सा टेबल उठाया है मैंने? एम्प्लॉयज का टेबल उठाया है, और एम्प्लॉयज का डेटा मुझे यहाँ बाइंड हो गया है. सो व्हाट इट इज अ क्वेरी, राइट? आपको मैंने एलिमेंट समझाए हुए हैं, वहां पे आपको हर चीज एक्सप्लेन करी हुई है. सी लुक एट दिस, दिस इज अ फॉर्मूला बार. वन सेकेंड. ओके. किसी को कुछ डाउट है?
सो ये जो अभी मेरा क्वेरी एडिटर ओपन हुआ है, दिस इज, लुक एट दिस, दिस इज पावर क्वेरी एडिटर। आप ऊपर देखोगे तो यू विल सी द नेम इज पावर क्वेरी एडिटर. नाउ यू कैन एक्सेस द एडिटर इन टू वेज. इधर यू कैन हैव इट ऑन द डेटा टैब एंड डायरेक्टली यू कैन जस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि गेट एंड ट्रांसफर ग्रुप पे जाके आप गेट डेटा कर लो, वहां से सोर्स कर लो, और सोर्स करके ऑटोमेटिकली ये आपका पावर क्वेरी एडिटर लॉन्च हो जाएगा. दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता है ये भी ध्यान दो. अल्टरनेटिव जो दूसरा है कि डेटा टैब पे ही क्लिक करना है, क्लिक द क्वेरीज एंड कनेक्शंस. ओके, क्लिक द क्वेरीज एंड कनेक्शंस button to open this page, and then double click a query in the pan to launch the editor. ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो. ऑन द डेटा टैब, जो आपका डेटा टैब है ये पीछे, ओके, इस पे आप क्लिक करो, क्वेरीज और कनेक्शन पे जाओ, यहाँ पे आपको क्वेरीज और कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, वहां डबल क्लिक करो, और वहां से आप भी एडिटर लॉन्च कर सकते हो. सो इधर आप यहाँ से गेट डेटा करके करो या क्वेरीज एंड कनेक्शन से करो, आपको ये एडिटर लॉन्च हो जाएगा. करके देखो क्विकली, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 2 मिनट्स, डू इट, करो. Ma'am, I go up to the query and connection. After that, I will write down the name of that particular file. Hmm. Okay. Open the pan and double click a query in the pan. यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे क्वेरीज जाएगा. It's not working like this in my case. Can you just check आप किस में वर्क कर रहा है क्या ये? नो मैम, वो अभी जो आपका एक टैब खुला था क्वेरीज एंड कनेक्शन वाला राइट हाँ. साइड में, बस हाँ. वही ओपन हो रहा है, वहां पे जीरो कनेक्शन दिखा रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Same thing is happening with me One too. second, 1 second. First, we have to close the Power Query editor. Then we see the connections there. क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे पहले आपको क्लोज करना होगा, लाइक पावर क्वेरी एडिटर जो आपने ओपन कर रखा है. देन आपको वहाँ पे कनेक्शंस दिखेंगे. It's already being 1 second. हाँ. नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे.
First, get the data, and then we have to close and load the data. Then after we can see their queries and connection here. नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन इधर से भी हमारे पास आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अल्टरनेटिव वेज, जैसे ये है ना, मान लो कि मैंने यहाँ से ये HRDPT का एक टेबल उठाया। Of go to transform data, ma'am. नहीं, वो मैं कर रही हूँ। मैं देख रही थी कि यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। On the in the even on the left side, close and load here. Yes, close and load. Then we go for the हाँ, query. Yeah. then it is coming. Yes, yes, yes. And that then we are able to see this. Yeah. ये एक्चुअली पहले ना, मैंने जहां तक मुझे याद है, यहाँ डायरेक्टली दिखता था। ठीक है, मैं अब देखती हूँ वो। So you are able to see this is the kind of basically table values you will able to see, and then ये पूरा टेबल है। ओके, यू विल फाइंड द, ये हमने सिर्फ लोड किया हुआ है। ओके, सो ये अभी लोड हो रहा है डेटा सोर्स से। ओके, और यहाँ पे कॉलम्स, जो भी आपके टेबल के कॉलम्स है वो आपको कंप्लीटली दिखाई देगा। विन द वर्कशीट एडिट आपको करना है तो एडिट कर सकते हो। आप उसको लोड टू सम अदर फाइल कर सकते हो। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन हैव इट हियर विद दिस एडिटर, टेबल डिजाइन एडिटर। ओके, या आप आपके तरीके से, आपको जो जो कॉलम चाहिए है वो आप यहाँ पे रख भी सकते हो। आपको नहीं चाहिए तो आप उसमें से डिलीट भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टू टेबल फ्रॉम शेयर पॉइंट लिस्ट, आप एक्सपोर्ट टू डेटा इनटू द शेयर पॉइंट, मतलब जो शेयर पॉइंट एप्लीकेशन है आपका, आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, यू कैन हैव द समराइज पीवोट फॉर इट, तो पाइवोट टेबल भी आप ऐड कर सकते हो। आप रेंज कन्वर्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हो। ऑल दिस थिंग यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। ओके, Yes, ma'am. अभी देखो एक और चीज है यहाँ पे, एडवांस। आप यहाँ से फिल्टर, फिल्टर क्राइटेरिया, यू कैन सेट अ फिल्टर क्राइटेरिया वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, कॉपी टू अनदर लोकेशन, आप फिल्टर करके किसी दूसरे फाइल पे आपको डालना है डेटा, दैट ऑल्सो यू कैन डू इट। ओके, यहाँ पे कॉपी टू वॉट यू, अगर आप उसी रेंज में आपको सेट करना है, आप उस रेंज डाल सकते हो। ऑल दिस थिंग यू कैन हैव इट इनटू द एडवांस फिल्टर साइड। ओके, देन आप दो टेबल को अपेंड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको चाहिए तो आप एम्प्लॉय टेबल ले लो, दूसरा टेबल आपको और कोई चाहिए तो आप वो ले लो, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे हमने सिर्फ टेबल इंपोर्ट करा है, इसलिए हमको एक ही टेबल दिख रहा है। अगर आपने पूरा डेटाबेस, क्योंकि अगर आप देखोगे, आई जस्ट शो यू, Ma'am, या what's the difference between merge and append, like in query you? So, अपेंड जो होता है ना, वो आपका जो भी फाइल का एंड होगा, मतलब जो भी रो यहाँ पे खत्म हो रही है ना 42 पे, उसके बाद 43 से अपेंड हो जाएगा। और जो मर्ज होता है वो इसके कॉलम्स में ऐड होंगे, कॉलम बीइंग एडेड इनटू इट। अपेंड होने के लिए आपके पास यही सब चीजें होनी चाहिए, और आप अपेंड करोगे इसके नीचे। दिस विल बी द अपेंड ऑपरेशन, मतलब फाइल के एंड से जो भी चीज ऐड करना, दैट यू आर गोइंग टू अपेंड यूजिंग अपेंड। एंड मर्ज मतलब एक उसके बीच में भी जाएगा वो, इन द ऑर्डर जो भी आपने क्राइटेरिया फिल्टर के लगाए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपके पास वैल्यूज है वो बराबर उसमें जाके सेट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर। मर्ज मतलब मिक्स होना।
ठीक है? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, ma'am. अभी यहां से अब ट्रांसफॉर्म डेटा, अभी ये गेट डेटा किया हमने, ओके। सो कनेक्ट टू द डिफरेंट डेटा सोर्सेज एंड लोड देम इनटू पावर क्वेरी, दैट इज अ गेट डेटा ऑपरेशन। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग ऑपरेशंस की बात करी थी पिछले बार। सो गेट डेटा मतलब क्या? कनेक्ट टू द डिफरेंट सोर्सेज एंड लोड देम इनटू पावर क्वेरी। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब उसका रूप बदलना, किसी तरीके से जो चाहिए है हमको उस रूप में उसको लाना है। तो उसके पहले हमको, अगर आई वांट टू क्लीन द डेटा, सो क्लीन एंड रीशेप कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो जो भी हमको कस्टमाइज चाहिए है, कस्टमाइज बोल लो या टेलर फिट चाहिए, जो भी टेलर फिट हमको चाहिए, जो पर्पसली हमको डेटा चाहिए है, सो दैट टेलर फिट वी कैन हैव इट with your specific specification requirements। ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. now how we are going to do this tailor, sorry, transform। हाँ, अब ये जो है ना गेट डेटा, एक मिनट, गेट डेटा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ व्हाट वी कैन डू इट विद द गेट डेटा। अभी जैसे हमने क्या किया, डेटा सोर्स सीक्वल से कनेक्ट किया, राइट? सीक्वल डीबी लिया, राइट? और उसका एक टेबल लिया। आप दोनों ले सकते हो, आप डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इंडिविजुअल टेबल भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर आप टेबल और कहाँ से ले सकते हो? यू कैन हैव द टेबल फ्रॉम योर CSV फाइल, मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल। आप कहीं स्टोर है आपके पास प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में, तो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है? देन आप किसी फ्लैट फाइल से भी आप डेटा ले सकते हो, सो यू कैन हैव इट विद द हेल्प ऑफ फाइल एज वेल, ओके। तो फाइल कौन से टाइप के आप ऐड कर सकते हो? सो यू कैन यूज फाइल लाइक XML फाइल, राइट? यू कैन यूज CBS फाइल, सॉरी, CSV, ओके। देन व्हाट यू कैन हैव इट, यू कैन हैव अ जेसन फाइल, जैसे जो नेटवर्क का डेटा स्टोर होता है, कि कैसे क्या लॉग्स बन रहे, किसी भी एप्लीकेशन को आप विजिट करते हो तो, या किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो पर्टिकुलरली एक लॉग डेटा क्रिएट होते रहता है, ओके, कि ये लोकेशन से सर्वर पे इतने बार हिट हुए, ये बार बार डेटा देखा गया, तो वो एक इंटरनली बैकग्राउंड प्रोसेस में वो डेटा जनरेट होते रहता है। सो दैट इज बीइंग जनरेट इनटू फॉर्म ऑफ जेसन। तो अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, एक सिनारियो है। अगर मान लो कि जैसे मेरा एक वेबसाइट है, ओके, मेरा एक वेबसाइट है, मान लो क्या लेते हैं हम, कुछ भी एक एग्जांपल लेते हैं कि आई वांट टू सेल माय, ओके, आपने कभी इसका FNF, इसका देखा होगा ना, FNF का, जो इसका है, बुके और चॉकलेट्स और गिफ्ट्स का, राइट? FNG FNB समथिंग कुछ, तो वो एक वेबसाइट है जिससे आप, Pawn and petals, ma'am. हाँ, फर्न एंड पेटल, FNP. राइट, FN. एफ एन पी, राइट राइट राइट। सो FNP जो वेबसाइट है, तो उस पे जो एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स है उनके, दे आर हैविंग सर्टेन गिफ्ट्स, दे आर हैविंग सर्टेन चॉकलेट्स और अ बुके और अ केक, राइट? सो दीज आर द बेसिकली, अगर मान लो एक लेट्स से एग्जांपल कि मेरा ऐसा वेबसाइट है, ओके, और अब मैं वेबसाइट से चीजें बेच रही हूँ। वेबसाइट मेरा है, चीजें जो है वो वेंडर्स बेचते हैं, ओके। तो मेरे को सिर्फ ऑर्डर लेना रहता है, और मैं फिर जैसे मान लो कि एक कोई केक शॉप मेरे पास है, एक कोई फ्लावरिस्ट मेरे पास है, कोई चॉकलेट बनाने वाला मेरे पास है, तो मैं उनको वो ऑर्डर देते जाती हूँ और वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, लाइक दैट इट हैपेंस एक्चुअली। कोई FNP डायरेक्टली खुद बनाता नहीं है ये सब चीजें, वो सिर्फ वेबसाइट से ऑर्डर कलेक्ट करते रहता है और ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं और डिलीवरीज होती है थ्रू द लॉजिस्टिक। So this is kind of model normally any online company is having, okay?
अब मुझे बीइंग अ F&P आई वांट टू एनालाइज कि मेरे कंटिन्यूअसली वेबसाइट पे कितने टाइम पे या कोई पर्टिकुलर आईपी से कितने बार विजिट होता है, या साल में सबसे ज्यादा कब विजिट होता है, या महीने में सबसे ज्यादा कब विजिट हो रहा है। तो उस केस में मैं मेरे वेबसाइट पे जो लोग लॉग इन कर रहे हैं या जो लोग विजिट कर रहे हैं उनका डेटा एक लॉग में कलेक्ट करते चलती हूँ। वो एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपका वेबसाइट होस्टेड रहता है वो उस होस्ट एनवायरनमेंट में आप एक लॉग फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब वो जो लॉग फाइल होती है वो होती है हमेशा जेसन फॉर्मेट में। ओके, उस जेसन फॉर्मेट की फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है और एनालिसिस करना है कि मेरे पर्टिकुलरली वेबसाइट पे सबसे ज्यादा दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव से ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, या मुंबई, पुणे, नागपुर से विजिट कर रहे हैं, या चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से विजिट कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस आई कैन इजीली डू इट विद द हेल्प ऑफ Power Query. Are you clear with that? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब ये हुआ डीबी हुआ, डायरेक्टली सीएसवी हुआ, जेसॉन हुआ, और इसके अलावा वी कैन ऑल्सो basically get the data from Azure, or we can say the cloud. Okay, so from the cloud environment also we can source the data, मतलब क्लाउड पे डेटा है। ओके, आपका एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन क्लाउड पे है, और उस क्लाउड के एप्लीकेशन से आपको डेटा एनालाइज करना है। तो यू कैन यूज क्लाउड बेसिकली वॉट एवर बी द सोर्स, और आप उसको ऐड कर सकते हो आपके पावर क्वेरी एडिटर में, और फिर आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर और नॉट क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। ये सारे प्रोसेस है, आज में इसको खत्म करना है मुझे। ओके, सो व्हाट द ट्रांसफॉर्म मीन्स, वंस योर डेटा इज बिंग लोडेड, मतलब आपका डेटा लोड हो गया है। ओके, वंस योर डेटा इज बिंग लोडेड इनटू योर पावर क्वेरी। ओके, तो अब क्या होता है, अगला बार आपको अगला क्या करना पड़ेगा। लोड तो हो गया है, उसके बाद व्हाट आई वांट टू डू इट, आई वांट टू रिफाइन इट ना। मुझे रिफाइन करना पड़ेगा, आई वांट टू रिफाइन दैट डेटा, आई वांट टू रिफाइन दैट डेटा अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। ओके, अकॉर्डिंग टू माई नीड्स, मतलब मुझे ये लोकेशन का एवेल्यूएशन करना है, मुझे ये देखना है कि अरे सबसे ज्यादा सेल कहाँ हो रहा है, या मुझे ये देखना है कि केक सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में ऑर्डर हो रहा है, या मुझे ये देखना है कि फ्लावर सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में प्रेफर किया जाता है और किस टाइम पे किया जा रहा है। सो सच काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस आई वांट टू फर्स्ट रिफाइन दैट डेटा, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। अगर मेरे को देखना है कि मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, तो मैं सिर्फ सिटी और ऑर्डर पे फोकस करूंगी। आई विल नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अगर मुझे प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि आई वांट टू जस्ट एनालाइज कि केक कहाँ से सबसे ज्यादा ऑर्डर हो रहा है, कब कब ऑर्डर हो रहा है, तो वो सारी चीजें मैं केक ओरिएंटेड फिर मैं एनालिसिस करूंगी। सो इट इज बेस्ड ऑन, आई विल रिफाइन दैट डेटा अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। ओके, एंड देन व्हाट आई विल सपोज टू डू, या तो यहाँ पे रिफाइनिंग करना मतलब क्या करना, व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द रिफाइनिंग मीन्स, रिफाइन मतलब एक तो उसको क्लीन करना, जो अनवांटेड डेटा है वो हटा देना है, और रीशेप करना। अगर मुझे एक पर्टिकुलरली सिर्फ केक के बारे में देखना है, आई वांट टू एनालाइज द केक ओनली, I will keep only cake data. So let's say in this example also, I don't want their phone number or a hire date or a job ID or a salary. I just want to evaluate first name, last name and email address. Just अगर ऐसे ही देखना है, या मुझे ये चेक करना है एम्प्लॉय नेम, लास्ट नेम and salary, I will keep only those column and remaining I will remove it. So that is also possible, and that is kind of transformation we can do it. Is it clear? And this transformation we can have it with the help of sort and filters. Then we can also add or remove. Okay, add or remove even columns.
हमको अगर कुछ एडिशनल कॉलम्स डालना है हम वो भी ऐड कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो चेंज द डेटा टाइप। अगर आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप आपके डेटाबेस में आपने डेट टाइम लिया है या आपने किसी चीज को वेर कर लिया है और आपको उसको बदलना है तो आप यहाँ पे बदल सकते हो। यू कैन चेंज द डेटा टाइप एज वेल। ओके, आप यहाँ पे यू कैन रिमूव द डुप्लीकेशन। ओके, एंड देन यू कैन ऑल्सो ट्रिम। ओके, ट्रिम, ट्रिम मतलब जो भी आपको यू वांट टू, जो भी स्पेस चाहिए है आपको डिवाइड करना है किसी पर्टिकुलर टेबल को दो पार्ट में या ट्रिम करना है, छोटा करना है आपको, उसकी कॉलम्स हटा देना है, दैट ऑल विल कम अंडर द ट्रिम साइड। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Fine. The next is what exactly the next we are having? Merge and combine, right? So merge and combine में क्या करेंगे? Then we are having merging, we are having appending. So appending means we will be adding row of one table to another table. Okay, with the we will do it at the end, from the end of the table. Okay, so for example, if you want to append a sales data from a different region or a month in a single table, that is will be the appending. And merging means merging two table based on इंडिविजुअल कॉलम्स। ओके, मतलब वो जैसे भी कॉलम ऑर्गेनाइज है उनको ऑर्डर में हम मर्ज करते चलते हैं, सो दैट इज मर्जिंग। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यहाँ पे आपके पास कंबाइंड क्वेरीज करके ऑप्शन होता है। यू कैन इवन मर्ज, यू कैन हैव एन अपेंड। दिखा? Ma'am, we can merge two tables also. या, Okay, ma'am. एंड डू इट, आई विल गिव यू नेक्स्ट 2 मिनट्स एंड डू दिस। आप कंबाइन करो, ये आपको मैंने ऑप्शंस बताए हैं, वहां से आप सिलेक्ट करके कंबाइन करो दो टेबल, करके देखो हाउ इट वर्क्स, लुक इट इनटू इट। जब तक आप साथ में प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा ये। इफ यू डन प्लीज लेट मी नो।
Then we can select only one column or one row at a time. Hmm. Right. Done, ma'am. Okay. What about others? Yes, ma'am, done. Okay. I'll give you next 2 more minutes. Let the other finish and then we will talk about next operation. Ma'am, in Office 365, how I will get this? In Office 365, it is not there. Ma'am, from where I will get this? I mean, if I'm using that actually. This no, in that case, you will not able to have it Power Query in the Excel. You directly have to use Power BI. Power Pay. Okay, ma'am.
It's done. Now let's talk about next. What is the next? Merging, combining is done, right? So we are having appending and merging. Now we will have a write the formula. So where the formula we can write? So suppose I want to add something. Okay, so anything I want to add into the existing table. Okay, let's example, just imagine I want to create a new column. Anything, I just add a new column. So text. Okay, so this is a column of the salary as well, and I want to add here a text column. So how I'm going to use this? So we will be using, so 1 second, I had not added query here, na? Okay. Now I will be using add column. Okay, so what I will use add, okay, column, add, add, go to the add column tab. Where is the add column tab? Have you ever see that add column tab is there somewhere? Anywhere? No, no, no. We are having custom column then. Can you just check where it is? The custom column. Go to the add column tab and custom column. Ma'am, you are not in Power Query Editor, right? Right now I'm in the Power Query Editor. No, No, I'm not. 1 second. you are in the normal Excel. Yes, 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 yeah. I'm just looking that only. Hmm. Now I am having add column, remove column, choose column, add column. Then I will be going with the click custom column. So where is custom column? And then I will be adding custom column, new column. Okay, in the custom column, this I will be adding in the column, I will be adding here text. Okay, or tax deducted or income tax. Okay, so the new column I am adding any name, you can have it like, and in the custom column formula, this is a formula what you are going to do. So let's say here I will be having salary. Okay, salary multiply by, say, let's say
10%. No, this will give you error. It will be 1. No, instead of that, I will be adding this 0.%. And then I will be insert this. Not employee ID. This will be of salary. Salary. Take it a simple one. Salary. Okay. And then I will be having token little error. Okay. Okay. So if you see here, the income tax is being calculated based on the salary. And this is being added here. Are you able to see? So you can refer whichever value you want to add throughout your data, and you can just have that formula based on whichever be the requirement. So we just have a income tax here. So I just added income tax. If you want something else, then you can, like, this is one basically employee side. So we had added this thing. Something else like sales or some forecasting things you want to evaluate. All these things we can have it with the help of this pattern. Okay, so this is a formula. I hope it is clear to you. And then load basically all the data, load data to Excel. So all the transformation you can apply to the data connection collectively. Okay, so whatever we did, that also you can again load to the back to the your actual Excel. Okay, this is your Power Query editor. Now this data you want to reflect to the actual Excel, then how you can do it? From Power Query editor, you need to just close the things. Okay, once you close the things, you try to close it. Okay, so you just close this. Okay, it will ask you, keep the changes. Okay, so from the query, oh, 1 second, it's not like that. Okay, 1 second. First, you need to close this. Okay, so use the close and load command. Close and load command. Look at this, close and the load command. Then either you can load it, query connection panel, and right click it to the choose to load to option, and then you can save it to particular web things, or you can create new pivot table, you can create new connection, you can existing sheet, you can have it, new sheet, you can have it, anywhere you can have it. Okay, and then this will be reflect the new sheet along with the income tax. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, you can try this. Okay, ये सारे steps है.
ये क्या है कि आपको याद रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसे सिर्फ आज देख लिया और हो जाएगा ऐसा नहीं रहता है। पावर क्वेरी इज अ काइंड ऑफ टूल एक्चुअली, सो यू नीड टू practice it. More you practice, more you understand, more you remember. Okay, सो दिस इज हाउ द पावर क्वेरी वर्क्स। कि आपका एक ऑलरेडी डेटा है, आपको सीक्वल डेटा में नहीं चेंजेस चाहिए हैं, आपको उसको एक्सेल में लाके कुछ नए चेंजेस ऐड करने हैं, कुछ रिमूव करने हैं। सी वी एडेड राइट नाउ, बट समटाइम वी नीड टू रिमूव समटाइम। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू कस्टमाइजेशन, you can easily have it with the help of Power Query. Now, is it clear to you how the Power Query works? Yes, ma'am. Okay. Now, I will be, look at this formula we done. Okay, we added a formula. So add formula, where we added in the, where we added formula Custom column. in the custom column, right? So when we want to basically add our column, so we will be having it, for adding formula, we will be using add column tab. Okay, and go to the custom column option. Okay, and then you can write the formula in the formula dialog box. It's a dialog box comes ना, so जो भी चाहिए आप वहां पे add कर सकते हो with the new column name as well, right? After that you need to load it. So when you are loading, you need to just select, what you have to select is load option, load and close basically in your Power Query editor, and then load the new data with basically custom column in new sheet or in a pivot or whichever way you want. Okay, so this is how the Power Query works. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Now, I'll be sharing few exercise on the Power Query. Maybe I'll share with the coordinator. They will share with you either in the group, or else what I will do is I will be compiling one assignment. In the assignment column, you will get it on your dashboard. Okay? Yeah. Is clear? Yes, ma'am. Fine. So we will stop here today. And yeah, somebody had dropped a chat. Yeah, Krishnan. So that is only the database we had used. Okay. In my SQL database, the name is HRDPT. You might be taken as a to learn HRMS database. So it's a one and same thing. I don't think so. There is a problem to understand it, Krishnan. Ma'am, Yeah, ma'am, can you say the today class file, ma'am? sure. Which file you want? A notes file, right? Yes, ma'am. 1 second. I'm sharing. Just give me 1 second. Once again, it directly goes to only Krishna. Just give me 1 second. I hope everybody had received the file, today's notes file.
Yeah, everybody received? Yes, ma'am. Yes, Thank you, ma'am. ma'am. Yeah. Okay, we will close the session here and we will meet tomorrow. We will meet in the next session. Ma'am, please 1 second. Let me download it. Yeah. Yeah, done. Everybody had downloaded? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So we will continue with the session, not the Power Query, because Power Query you need to explore more and more. I will give you a few more assignments for that. We will start a new topic into the new session. Okay, next session.